Hello students, this is Vijay sir, an expert CBSE English medium teacher, and today I am going to dictate the question answer of English book. The name of the book is A Stepping Stones, course book class 8. A Stepping Stone course book class 8, and in this video I am going to write the question answer of chapter 6. I am going to write the question number of chapter 6, that is here in page number 44. In page number 44, the name of the chapter is The Village Without Doors. The name of the chapter is The Village Without Doors. The Village Without Doors, and in this video I am going to dictate the first two answers, means first two questions answer. So see the questions here, it is given in your book, and question number B, answer the following questions. Answer the following question number 1 and 2. Question number 1 and 2. See here, I am reading the question and you can see this complete question here also. You have also the book, so you can see in your book also. So I am going to dictate the question here. Which is the only problem the villagers have to face because of their houses having no doors. मीन्स विच इज़ द ओनली प्रॉब्लम, मतलब वह एकमात्र समस्या क्या है, द विलेजर्स हैव टू फेस, जिसे गांव वालों को, मतलब जिस समस्या को गांव वालों को सामना करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर हाउसेस हैविंग नो डोर्स, क्योंकि उनके घरों में कोई दरवाजे नहीं हैं। तो ऐसी एकमात्र कौन सी समस्या है? तो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर. See the answer of this question, and I am reading the answer and you will see here. The Village Without Doors, name of the chapter, The Village Without Doors. Answer of question number 1. Answer of question number 1. There is nothing to knock on to announce your arrival at a home. Full stop. Under inverted comma, just shout out and somebody will come to the door. So I am reading the answer once again. There is nothing to knock on to announce your arrival at a home. Full stop. At a home, inverted comma, just shout out and somebody will come to the doors, inverted comma, close. So this is the answer. See the complete answer here. You can read and write. Now I am telling you the meaning of the answer of this question. So what is the meaning? That there is nothing to knock on टू अनाउंस योर अराइवल, मतलब कोई व्यक्ति, चूँकि घर में दरवाज़ा नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जब आता है तो गेट पे कुछ भी उसे नॉक करने के लिए नहीं मिलता है, मतलब उसके घर के मतलब के पास चूँकि दरवाज़ा नहीं है, घर में डोर में दरवाज़ा नहीं है, तो किसी भी बाहरी व्यक्ति को जो घर के पास आता है उसको नॉक करने के लिए वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, चूँकि लोग दरवाज़ा पर नॉक करते हैं, तो वहाँ पर नॉक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है. मीन्स जस्ट शाउट आउट एंड समबडी विल कम टू द डोर, केवल आपको दरवाजे के पास खड़ा होकर के ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है और कोई ना कोई अंदर से आपसे मिलने आता है, मतलब कोई अंदर से आपको देखने आएगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. Now see question number 2 in your book and see this question. What is the question? What is the legend? What is the legend connected with the custom of not having doors to houses? What is the legend connected with the customs of not having doors to the houses? Means what is the legend? Legend मतलब दंत कथा का. what is the legend? वह दंत कथा क्या है? कनेक्टेड विद द कस्टम्स ऑफ नॉट हैविंग डोर्स टू हाउसेस, मतलब घरों में जो दरवाजे नहीं लगे हैं, इस रीति रिवाज से संबंधित कौन सी दंत कथा है, उस कथा को थोड़ा डिटेल में लिखिए. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग हेयर. सी द आंसर, कंप्लीट आंसर इज गिवन हेयर. हेयर यू कैन सी एंड आई एम डिक्टेटिंग द आंसर. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू ए लीजेंड, मतलब एक दंत कथा के अनुसार, ए ह्यूज ब्लैक स्लैब वाज फाउंड अमंग द डिबेरिस. मीन्स ए ह्यूज ब्लैक स्लैब, एक बहुत बड़ा जो है काला जो है सिल्ली, वाज फाउंड अमंग द डिबेरिस, मतलब जो भी कूड़ा कचरा बह करके आता है उसमें एक बड़ा सा काला सिल्ली मतलब देखा गया. ब्राउट बाय वायलेंट फ्लड, जो कि वहाँ पर मतलब बहुत उग्र
फ्लड की वजह से बहकर आया था एंड रेन्स इन द एरिया, मतलब उस एरिया में जो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा और जो बाढ़ आ गया था, तो उस बाढ़ की वजह से एक बड़ा सा सिल्ली बहकर आ गया था। इट वॉज लॉस्ट इन द एक्सपोज्ड रूट ऑफ ए ट्री, और वहाँ पे एक पेड़ था, उसके जो जड़ थे उसमें आकर के वो सिल्ली फंस गया था, मतलब वहाँ पर आकर वो अटक गया था। व्हेन द रेन्स मीन्स हेयर इट वॉज लॉस्ट इन द एक्सपोज्ड रूट्स ऑफ ए ट्री। व्हेन द रेन्स अबेटेड, मतलब जब बारिश रुकी। व्हेन द रेन्स अबेटेड मीन्स हेयर व्हेन द रेन्स अबेटेड, मतलब जब बारिश रुकी। द विलेजर्स ट्राइड टू डिसलॉज इट बट फाउंड दे कुडंट मूव, लेकिन तब जो है जब बारिश रुकी तो गांव वालों ने उसको जो है वहाँ से हटाने का प्रयास किया, बट फाउंड दे कुडंट मूव, लेकिन उन विलेजर्स ने पाया कि वे लोग सब मिलकर भी इसको हटा नहीं पा रहे हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे द विलेज हेडमैन हैड ए ड्रीम, और अगले दिन गांव का जो हेडमैन था, व्यक्ति था, उसको एक सपना आया। इन विच ए वॉइस टोल्ड हिम, जिसमें एक आवाज़ मतलब सपने में उस व्यक्ति से कहा, गांव के हेडमैन से कहा, टू बिल्ड ए श्राइन, कि एक टेम्पल बनाइए, मतलब एक मंदिर जैसा बनाइए। फॉर द स्लैब, मतलब उस स्लैब से, उस सिल्ली से एक मंदिर जैसा बनाइए। बट इट शुड हैव नो रूफ और डोर्स, और इसमें कोई दरवाज़ा और छत नहीं होना चाहिए। और तभी से मतलब कि ट्रेडिशन बन गया उस गांव में कि उस गांव में किसी भी घर में कोई दरवाज़ा नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सी दिस कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 here. You can see here. If you will have any problem, you can comment it also. Thank you, student. Thank you so much. Thank you for watching this video.